here we go. We had already, just a general recap that we did yesterday. We had looked into the introduction of the Indian climate, like what are the factors that influence the Indian climate. We had gotten a very, how do you say, very brief intro into the western jet streams and the eastern jet streams, easterly jet streams. Westerly jet streams and easterly jet streams. Then we had seen about the general introduction to the Indian monsoon and also checked out the proper season, okay, along with the summer season. Summer season के once again I repeat, ये सारे mango showers, blossom showers, nor'westers, loo, ये जितने भी local नाम है pre monsoon showers के, उसको please याद रखिएगा and region याद रखिएगा because that is very important, okay. वो पूछा जाता है आपको एग्जाम में. And monsoon season को देखा था, उसके सारे winds को देखा था, कहाँ से आते हैं, 2 branches है उसके subdivisions and so on so forth, and where do they meet, कोई एक specific area है जिसको ज्यादा बारिश मिलती है, कम बारिश मिलती है, and why does that happen, ये सारी चीजें चेक की थी हमने. Okay, now we move on to the next season. Since we finished with 2 seasons, अब बाकी के 2 seasons बचे, retreating and cold monsoon. Okay, तो retreating northeast monsoon and retreating monsoon. So retreating monsoon का मतलब होता है कि the monsoon has already like you know June to September तक monsoon season होता है, right? अब उसके बाद the monsoon has to retreat. Okay, तो ये जो 2 महीने होते हैं, we are October and November. Okay, that's the retreating monsoon for you. ये नजर आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि monsoon उसी तरह से retreat करता है जिस तरह से इंडिया के अंदर आता है. Okay, so October and November are the 2 months during which the retreating monsoon thing happens. Okay, we are looking at October and November for the months for retreating monsoon. Okay, now let's see what happens by the end of September. September के end तक ना, remember हमने क्या सोचा था कि this is the equator, this is the Tropic of Cancer and this is the Tropic of Capricorn. Okay, मैं इसको Capri बुला रही हूँ, Cap बुला रही हूँ, इसको Can बुला रही हूँ. Okay, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Okay, now sun, then it was summer. तो sun क्या कर रहा था? Sun was going from March to June. Okay, this is March and this is June. Okay, तो sun June में इस पे था, Tropic of Cancer पे overhead था. Okay, now what happens is June के बाद summer starts, sun starts his journey back to the equator again. Okay, sun वापस equator की तरफ आने लगता है. So अब ये सन जब इक्वेटर की तरफ वापस आता है, so finally जब वो finally इक्वेटर पे पहुंच जाता है, so it is September. Okay, so if you are talking about June to September, जब तक आप June to September, somebody is stopping people, is there a question you need to ask or no? Okay, no problem. All right, here we go. So sun, what is like while the monsoon was on in India, we are talking about a period from June to September. Okay, so during that period the sun was coming, like sun का journey जो था वो Tropic of Cancer से all the way equator तक था. तो equator अभी finally in the month of September the sun is 21st September, let's imagine. Okay, so September के end तक sun is comfortably positioned on the overhead the top of equator. Okay, अभी sun क्या करता है? Now the sun is going to go down from the equator to the Tropic of Cancer. Okay, September से लेके December तक sun का agenda है कि now we have to go to, now the sun is going to go to the Tropic of Cancer. Okay, it is going to be overhead the Tropic of Cancer. Sorry, Capricorn. I'm very sorry. Tropic of Capricorn पे overhead जाना है from September to December. That is where the sun is going. अगर sun उधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? Sun is going downwards. Okay, southern hemisphere में जाने वाला है sun अभी clearly. तो इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लियरली थोड़ा सा यू नो लाइक यू विल फील हाई प्रेशर जोन फॉर्मिंग. ओके, थोड़ा सा लो प्रेशर जोन जो होगा वो एटलीस्ट वीकन तो हो जाएगा. ओके, लो प्रेशर जोन अभी सन के साथ मूव करता है. प्लीज रिमेंबर, लो प्रेशर जोन सन के साथ मूव करता है. जहां कहीं सन जाएगा वहां पे लो प्रेशर होता रहेगा बिकॉज टेम्परेचर हाई होता रहेगा. सो नाउ इफ द लो प्रेशर इज गोइंग टू स्टार्ट शिफ्टिंग समवेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रेशर डेवलप होने वाला है. इस रीजन में थोड़ा सा हाई प्रेशर सॉर्ट्स का ये डेवलप होने वाला है. ओके, सो यहाँ पर नाउ इन दिस केस द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कहाँ है इज बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विंड्स, अगर आपको लाइक यू नो इफ यू हैव टू हैव इनकमिंग विंड्स किसी भी तरह के, स्पेशली वंस व्हिच ब्रिंग यू रेन, तो वो रीजन पे वहां पे लो प्रेशर होना चाहिए. ओके, अगर बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लो प्रेशर नहीं होगा तो the possibility of winds coming in is almost zero. अभी winds बाहर की तरफ जाएंगे. Now the winds will start to withdraw. Okay, so monsoon starts to withdraw at the start of September.
तो ऑब्वियसली वेस्टर्न राजस्थान ये वाले रीजन से विड्रॉ करना शुरू कर देता है वो. ओके, दैट्स द रीजन. वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, वहां से विड्रॉ करना शुरू कर देता है. सो ऊपर से दिस रीजन से, यूजुअली फ्रॉम दिस रीजन, सो यहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर देता है मानसून. ओके, जहाँ पे लास्ट गया था वहां से सबसे पहले विड्रॉ करना शुरू कर देता है मानसून. ओके, तो मोस्टली ड्राई होते हैं विंड्स बिकॉज लैंड से लैंड पे चल रहे, लैंड से सी की तरफ जाते हैं, यू नो. सो दे गिव रेन्स टू कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा. तो जाते जाते कहाँ जहाँ कहीं थोड़ा सा बारिश लाइक यू नो मॉइस्चर कलेक्ट कर सकते हैं वो ले लेते हैं एंड देन कोस्टल रीजन्स में बारिश दे देते हैं. ओके, मीनवाइल द लो प्रेशर जोन शिफ्ट्स फ्रॉम Bay of Bengal, shifts from northern Bay of Bengal in early October to Karnataka and Tamil Nadu, and finally it disappears from the peninsula by December. Okay, तो वो low pressure zone जो है ना वो धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ shift करते हुए finally equator से नीचे ही चला जाता है December तक. Okay, so this season is marked by moist land. Okay, why moist land? Because अभी अभी बारिश होके गया था, right? June to September was the time when it rained in India, so the moisture is still there. Okay, वो moisture है अभी भी, लेकिन the skies are clear because there are no more incoming winds. The skies are clear and the temperature has risen because it is not raining anymore. It is not raining anymore. It is nothing is bringing down the temperature. So normal जो temperature rise है वो तो feel करते हैं tropics का. Okay, so you feel a rise in temperature. There is moisture in the air and the skies are clear. Okay, तो ये सारे high temperature, high humidity conditions है. Please mark these two words. Okay, high temperature, high humidity conditions. These are the ones that we called as October heat. Okay, इसको famously October heat कहते हैं. It feels very very oppressive. Okay, बहुत oppressive लगता है because the temperatures are clearly rising, humidity भी feel होती है, but then you can't, there is nothing to be done about it and there is no coolness in the air. जैसे monsoons का coolness हुआ करता था ना, वो coolness नहीं feel होता है. Okay, now this happens in the first half of the October usually. Then उसके बाद in the second half of the October of the month of October usually temperature starts to fall. Okay, North India में इस तरफ इस region में the temperature starts to fall. Okay, temperatures कम होने लगते हैं. ऊपर से यहाँ पर अंडमान सी की तरफ से साइक्लोनिक डिप्रेशंस आ जाते हैं, यू नो, ये वाला जो प्लेस है दिस रीजन, तो यहाँ से यूजुअली साइक्लोनिक डिप्रेशंस वगैरह आ जाते हैं. Pre-monsoon, post-monsoon, that's the time when you can expect cyclonic depressions. Okay, ये depressions Andaman Islands की तरफ rise करते हैं, then they move towards the Bay of Bengal. Tropical cyclones Bay of Bengal में ज़्यादा frequent होते हैं than the Arabian Sea. ये this also you've got to remember. Because popular and also because I had once explained to you कि Bay of Bengal के ये इतने ज़्यादा you know destructive क्यों माने जाते हैं. One, first of all क्योंकि वो आते कभी कभी चाइना सी से है. Okay, चाइना की तरफ से आते हैं, Bay of Bengal में आते हैं तो वो और ज़्यादा they just recurving and acquiring more strength. Bay of Bengal is clearly you know like more Arabian Sea थोड़ा सा खुला है, right? Bay of Bengal थोड़ा सा you know properly curved off location है. So that is also a thing. And ऊपर से ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे जहाँ पे ये साइक्लोन स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. So they just become very destructive. Okay, so retreating monsoons को दो reasons के लिए याद रखिएगा. One, first of all उसका timeline याद रखिएगा, month October and November. दो, October heat के लिए याद रखिएगा, high temperature, high humidity conditions clearly. And most importantly for the post-monsoon cyclonic depressions. Okay, post-monsoon cyclonic depressions जो occur करते हैं in the coastal regions. All right, ठीक है, that's what you remember them from. And that the monsoons retreat in exactly the same manner in which they come in. Okay, जहाँ पर it is always, see people, सबसे पहले बारिश आपको किस region में मिलती है? This region, right? You received rains first over here नहीं रे बाबा, here sorry. You received rains over here, ये कोलकाता वाले region में and all, है ना? This is where you received the first rains. So clearly ये वाला भी नहीं, ऐसा वाला, this was only correct. मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश मिलती है. Okay, so usually आपको जहाँ सबसे पहले बारिश मिली थी ना, तो वहाँ पे आपको सबसे लास्ट बारिश भी मिलती है. Okay, try to remember it this way, because जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते बाहर भी चले जाएंगे. Okay, that's the thing. Okay, now that we are done with retreating monsoon, we move on to the northeast monsoon season or the cold weather season. Okay, या winter जिसको हम कहते हैं, we are looking into that. Okay,
The reason why this is called as the northeast monsoon season is because this is the direction of the winds during this season. Okay, winds northeast se leke southwest tak jate hain. That is how the winds blow, and that is why this season is famously called as the northeast monsoon season. Okay, December to Feb. Let's say it goes from December to Feb. The skies are obviously clear, like obviously dry weather hota hai, low temperatures at night, ठंड होती है ना, pleasantly warm days होते हैं. The winters are very well defined in North India. North India में well defined है, Peninsular India में well defined नहीं है. Peninsular India में आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा seasons का difference नहीं नजर आता है. You don't think that like North India में seasons का difference extreme होता है. Okay, because of the continentality. Northern India has a very marked difference in seasons. So if the summer temperatures are anywhere near 40, 45, the winter temperatures are negative sometimes, like that cold. It can be that cold, okay? Whereas in southern India, winter temperatures will also not be lesser than 25 degrees Celsius. Like clearly, peninsular India is not a place where the winter temperatures will drop a lot, okay? So peninsular India में इतने well defined नहीं होता है winter season, because इतना marked difference नहीं feel करते हम लोग because of the nearness to the ocean. Okay, please remember that. Peninsular India is close to the ocean, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा difference नहीं दिखता आपको. Cool. Okay, let's look at this part now. Northeast monsoon. इसका टेम्परेचर देख लेते हैं सबसे पहले, कहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर होता है. ये एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि नाउ दिस इज अ कंपैरिजन थिंग. ये थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी होगा. नॉर्थ इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया में डिफरेंस क्या होता है, ओके, इन winter temperatures. So if you're considering the winter temperature now, January usually happens to be the coldest month. Okay, let's go with January as the coldest month. Temperature जो होता है, it decreases from south to north. Okay, मतलब north south में आपको clearly above 25 you can see, right? ये proper like it's a range of temperature कि सबसे नीचे आपको above 25 degrees Celsius का temperature मिलेगा. Then in this region, this entire region you'll get a temperature of around 20 to 25 degrees Celsius. फिर ऊपर और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा नॉर्थ को शिफ्ट कर जाएंगे, सो इट इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 20. थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे तो देन यू आर एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इफ यू गो टू द वेरी वेरी नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन्स, तो देन वहाँ पे बिलो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. नाउ नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव कोल्ड होता है. ओके, व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंटलिटी. The region is very, very far from the moderating influence of the sea. Okay, Punjab, Haryana, Rajasthan. You clearly land tends to, I repeat myself once again, land tends to cool down very faster and warm up also very faster. Okay, heats fast and it cools down very fast. So that is why the continentality factor plays so much when you're away from the sea. Okay, because the land is clearly not going to have the moderating effect of the sea, and that is why winters में उसका temperature बहुत कम हो जाता है. सेकेंड सिचुएशन जो आप नोटिस करते हैं इज द स्नोफॉल. ओके, इस रीजन में थोड़ा सा स्नोफॉल होता है. हिमालयन रीजन में ना यू विल फाइंड अ बिट ऑफ स्नोफॉल. ओके, तो उसकी वजह से एक कोल्ड वेव जैसा सिचुएशन आ जाता है. एंड फेब्रुअरी में क्या हो जाता है कि कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से थोड़ा सा कोल्ड वेव आ जाता है अलॉन्ग विथ फ्रॉस्ट एंड फॉग्स. ओके, तो ये सेंट्रल एशिया वगैरह वाले रीजन से यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड वेव सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज फ्रॉस्ट एंड फॉग आ जाता है तो थोड़ा सा कोल्ड वेव जैसा सिचुएशन हो जाता है. ओके, सो क्लियरली लाइक बाकी के विंड्स से भी होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटलिटी इज अ मेजर फैक्टर. ओके, सेकेंड सिचुएशन अभी पेनिनसुलर इंडिया का कंसिडर करते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पेनिनसुलर इंडिया. वी सीन व्हाट हैपेंस इन नॉर्थ इंडिया. अब नीचे आके देखते हैं. पेनिनसुलर इंडिया में क्या हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर इज एनीवेयर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है बिकॉज यू आर टू क्लोज टू द सी. यार लाइक ये वाला रीजन तो क्लियरली कोस्टल है. दिस एंटायर होल थिंग बिकम्स कोस्टल. ओके, ना बाकी वाले रीजन पे भी ऑफ कोर्स ये वाला रीजन थोड़ा सा कॉन्टिनेंटलिटी फील करेगा, लेकिन फिर भी इट इज नॉट दैट फार फ्रॉम द सी. ओके, इट इज स्टिल क्लोज टू द सी. इट इज नॉट लाइक थोड़ा सा इफेक्ट तो मिल जाता है. एंड ये वाला जो विड्थ है वो भी बहुत नहीं है ना, लाइक क्लियरली इट्स नॉट एज अवे फ्रॉम द सी. सो वी क्लियरली यहाँ पे इतना वेल मार्क्ड विंटर सीजन नहीं होता है. ओके, this is a very contrasting factor. You got to remember Thiruvananthapuram में clearly mean max temperature जो है that is around 29.5 degree Celsius. Okay, whereas January का temperature is around 31 degree Celsius. तो in Kerala आपका जो मॉनसून का टेम्परेचर होता है जून का टेम्परेचर. ओके, immediately following the summer, June temperatures are anywhere around 29, like this is the observation, 29.5 degree Celsius का mean temperature है.
whereas जनवरी का मीन टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस, मतलब विंटर्स का टेम्परेचर ज्यादा है. ओके, नाउ इसका रीजन ये होता है, वन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज केरला में जब बारिश होती है, जून में बारिश हो रही है केरला में, ओके, मेजर बारिश हो रही है इन केरला, यू गेट लॉट ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसकी वजह से टेम्परेचर एनीवेज नीचे आ जाते हैं. जनवरी में वहां पे बारिश नहीं हो रही है, एंड केरला इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. इफ यू सी कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, केरला इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, सो ऑब्वियसली वहां पे, एंड सन का मार्च ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, आई मीन इक्वेटर से ऑल द वे अभी नीचे हो रहा है, लाइक फ्रॉम सितंबर टू दिस व्हाट डू यू से डिसम्बर, द सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड आउट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे की तरफ जा रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में. सो उसका प्रॉक्सिमिटी टू सन भी है थोड़ा सा. ओके, तो इट्स क्लियरली नियर द इक्वेटर, वो थोड़ा सा क्लियरली टेम्परेचर्स हाई होंगे वहां पे तिरुवनंतपुरम में. ओके, नाउ let's understand pressure कैसा होता है. okay, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में what sort of pressure do you notice, किस तरफ high pressure है, किस तरफ low pressure है. let's try to understand that. okay, once again sun is moving towards the tropic of Capricorn. ये equator है, from September to December the sun is moving from equator towards the tropic of Capricorn. okay, मैं इसको कैप बुला रही हूँ, so it is moving in this direction. all right, winter solstice पे 22nd December को the sun is going to be on the tropic of Capricorn. okay, so winter solstice तक feeble high pressure conditions develop हो जाते हैं. सन अभी southern hemisphere में चला गया, तो clearly northern hemisphere में equator के ऊपर जो northern hemisphere है वहां पे तो high pressure conditions develop होते हैं, right? especially इस region में अच्छे खासे high pressure conditions develop हो जाते हैं. okay, whereas southern India में यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा low pressure conditions है. okay, there are a bit of low pressure conditions over here. नीचे और भी इक्वेटर से नीचे और भी लो प्रेशर कंडीशंस है. ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न रीजन है ना, पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला, यहाँ पे पूरा लैंड है. रिमेंबर, दिस इज ऑल लैंड ओवर हियर. दिस आई एम टॉकिंग ऑफ दिस रीजन नाउ. we are saying कि यहाँ पर पूरे high pressure conditions है, and this area will have a bit of low pressure conditions. that is what is happening. okay, so air कहाँ से कहाँ flow करेगी, where will the winds flow from? in this direction. okay, what is this direction? northeast to southwest. okay, इस direction में flow करेगा wind. and now I have lost my, okay, no I have it. okay, so the winds blow from the northeast direction, from a high pressure zone to a low pressure zone. तो वो wind जो होता है वो लैंड से सी की तरफ आता है. ओके, इट कम्स फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, एंड इट ब्लोज फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए उसका नाम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स होता है. ओके, बिकॉज विंड्स आर ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे अराइव. जिस डायरेक्शन से आते हैं उस डायरेक्शन पे विंड्स का नाम होता है. ओके, नाउ ये जो विंड्स होते हैं ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करते हैं, तो मॉइस्चर कहाँ से कलेक्ट करेंगे? दे कांट कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द लैंड, राइट? द विंड्स हैव टू ब्लो ओवर द सी टू कलेक्ट मॉइस्चर. तो लैंड पे ब्लो करते हैं, इसलिए ये विंड्स ड्राई होते हैं. ओके, दीज आर ड्राई विंड्स. द थिंग इज कि जब ये विंड्स अभी सिर्फ यहाँ से पास करते हैं ना, बे ऑफ बंगाल से. ओके, सो अगर ये वाला विंड है, वी आर ट्राइंग टू ट्रेस दिस विंड नाउ, तो ये वाला विंड जब बे ऑफ बंगाल से पास करता है एंड यहाँ पे आता है, तो इस रीजन में, ये तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ पे वो ये मॉइस्ट हो गया, राइट? नाउ इट गॉट मॉइस्चर व्हाइल पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल. तो वो मॉइस्चर कलेक्ट करके किस तरफ देगा? ये कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश देके जाता है तमिलनाडु में. ओके, हेंस तमिलनाडु इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जिसको अपना मैक्सिमम बारिश जो होता है उसका जो मेजॉरिटी प्रेसिपिटेशन होता है वो इस सीजन में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के सीजन में मिलता है. ओके, shall we, will you remember this? ये आसान है. okay, let's see. one moment. all right, ठीक है, you'll get this ना? ये आसान था, right? okay, एक और चीज हमको समझनी चाहिए, टेम्परेट साइक्लोन्स. दिस इज अनदर फीचर. ओके, मेजर फीचर है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स का. टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं हमारी तरफ, लेकिन आते कहाँ से? इस रीजन से. ये जो मेडिटेरेनियन है यहाँ पे, कैन यू सी कौन से रंग में? जो येलो में, I'll do this in yellow because nothing else will दिखेगा, राइट? येलो, हाँ दिखेगा. ओके, सो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो ये मेडिटेरेनियन सी से ये मतलब यू नो दिस इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर दीज टेम्परेट साइक्लोन्स. ओके, तो ये मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट एशिया से आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स. उनको यूजुअली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अपने साथ ले आती है. वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स थोड़ा ऊपर ट्रैवल करती है. ओके, ऊपर एज इन वो सरफेस सर्कुलेशन नहीं है, वो अपर एयर सर्कुलेशन, 9 to 16 kilometers above the surface of the earth. तो ये वाली जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होते हैं मेडिटेरेनियन पे, तो उसको लेकर हैप्पीली ऐसे यू नो इट विल ब्रिंग इट ऑल द वे टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके,
ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इस तरफ लेके आती है वो. इट विल क्रॉस ईरान एंड पाकिस्तान एंड इट विल गेट दीज टेम्परेट साइक्लोन्स ओवर हियर. उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं. ओके, वेस्ट की तरफ से आते हैं इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ओके, नाउ थोड़ा सा ही रेनफॉल मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत रेनफॉल मिलता है. यू गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी सीजन. ओके, रबी सीजन को ना कैसा होता है, सारा रेनफॉल एक साथ नहीं चाहिए. ओके, राइस को जैसे सारा रेनफॉल अच्छा लगता नहीं, राइस को भी बार बार रेनफॉल लगता है. यूजुअली रबी सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें यू नीड अ बिट ऑफ रेनफॉल एंड देन like you know you need the crops need a bit of water, then उसको थोड़ा सा ripen होने के लिए टाइम चाहिए एंड देन वापस थोड़ा सा रेनफॉल चाहिए एंड देन इट शुड बी ड्राई. ओके, वो ड्राई होना चाहिए मोस्टली उसके बाद. सो वो जो हल्का सा रेनफॉल की जरूरत होती है, दैट यू गेट इन दिस सीजन. ओके, ये रबी सीजन वाले like within that time period, within that time window, ये टेम्परेट साइक्लोन्स बराबर आके एकदम हल्का सा रेनफॉल देके चले जाते हैं. ओके, meanwhile there is a snowfall in western himalayas also. ये western himalayas में इस तरफ जो mountains है वहां पे वो winds are stopped. Okay, they are blocked. ये जो साइक्लोन वाले winds आते हैं, cyclonic winds आते हैं, they are blocked over there and वहां पे अच्छा खासा snowfall हो जाता है western himalayas में. Okay, so this thing happens over there and we get about 4 to 5 depressions on an average between December to February. Okay, December to February ये थे 2 महीने में हमको almost like 4 to 5 depressions मिल जाते हैं. Okay, so that is what it's not one single depression. Rabi crops require well distributed rainfall. Yeah, you don't require a lot of rainfall, but you require well distributed rainfall. Now let's consider which areas in India actually receive some sort of rainfall. Okay, so let's see this one. ये Pondicherry and ये Kerala नजर आ रहा है आपको. Can you see the legend down here? Regions of high rainfall. Okay, yellowish color में जो नजर आ रहा है, that is regions of high rainfall. Okay, ये greenish color का section जो है, that is regions of moderate rainfall. क्योंकि यहाँ पे बहुत moderate rainfall होता है. And ये जो pinkish color का region है, that is regions of low rainfall. Okay, this is the kind of monsoon you can expect in the cold monsoon. As in, this is the kind of rainfall you can expect in the cold season. Okay, अभी northwest India में those weak temperate cyclones जो है, now I'm going back to a different color. Okay, so we expect those weak temperate cyclones from the Mediterranean. तो ये इस region को rainfall देंगे. This is the region that will get the rainfall, and it's a meager rainfall. Okay, it is just beneficial for the rabi crops. That is our only and Himalayas में थोड़ा snowfall होता है. ये snow summer season में melt होके पानी बन के चलता है. Okay, so we are happy with that. That's all good over there. Okay, central parts of India and northern parts of South India also get occasional rainfall. Once again, local disturbances and वो सब की वजह से usually मिल जाता है. Arunachal and Assam also get rainfall. Okay, थोड़ा सा rainfall उस तरफ भी आ जाता है. Now consider this one. तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन या फिर सदर्न आंध्रा, उसके ऊपर थोड़ा सा साउथ ईस्ट कर्नाटक एंड केरला. ओके, वी आर कंसिडरिंग दिस रीजन नाउ. ये जो 2 रीजन्स है, they get pretty much torrential rains. Okay, यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल मिलता है. Majority rainfall of Tamil Nadu is actually received in the months of October, November. Okay, usually इस region में मिल जाता है because वो जो north east monsoon winds होते हैं, they cross the Bay of Bengal. winds इस तरफ से आ रहे हैं, right, north east to south west direction में. तो वो Bay of Bengal को cross करते हुए जब land को cross करेंगे तो land पर precipitation देके आगे चले जाते हैं. Okay, that's the general idea. So please remember how the rainfall also goes. Okay, now let's introduce ourselves to 2 concepts. One is distribution of rainfall, the other is variability of rainfall. I think you understand what it means by distribution of rainfall. It's very easy. Distribution of rainfall would mean which area will receive how much of rainfall. Okay, so average annual rainfall जो होता है इंडिया में, that is about 125 centimeters. Okay, 125 centimeters का rainfall होता है इंडिया में अपने यहाँ पे, average, on an average. Okay, we are discussing on an average, we get that much that much quantity of rainfall. Now, which are the areas of high rainfall? ये legend दिख रहा है आपको side में. Can you see the blackish areas? This is Western Ghats वाला region. This is that Meghalaya plateau वाला region. Okay, यहाँ पे सबसे ज़्यादा rainfall मिलता है. You get extremely high rainfall. Okay, फिर ये जो थोड़ा सा dark gray area है, जो Western Ghats का पूरा है, and ये वाले region का Sikkim and Arunachal Pradesh and Assam वाला region, and the Meghalaya plateau itself. Okay, that is the area of extremely high rainfall. Okay, अच्छा खासा rainfall मिलता है. So you get the highest amount of rainfall in Monsoon. If you have to consider a general place जहाँ पे बहुत rainfall मिलता है, तो apart from the Meghalaya plateau, it's got to be Western Ghats. Okay,
So highest rainfall along the western coasts on the Western Ghats, some Himalayan regions of Northeast and Meghalaya hills. Okay, and then the second place where you get enough rainfall is the Northeast. Okay, fine. So more than 200 centimeters of rainfall मिल ही जाता है, and Meghalaya hills में तो almost 1000 centimeters का rainfall होता है. Okay, medium rainfall कहाँ मिलता है? Where do you get medium rainfall? Now this is, I'm going to take this off. ये map please consider कीजिएगा. Medium rainfall is this. Now you have to go for southern parts of Gujarat. Can you see this section जहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है? Can you see this part of the lighter gray section? We are talking of the lighter gray section. Can you see the lighter gray section of it? हाँ, मैं उस एरिया को एनक्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ. This light, can you see this lighter gray section right beside the, yeah, okay, we are talking of this section. Okay, so ये जो light gray में है ना, that is that place जहाँ पे आपको, अरे यार उल्टा किया है मैंने यहाँ पे, wait a minute, sorry, this section, I should have just, this is the section, this is the one. Okay, this is the section that I'm talking about. So this is the thoda sa light, you know, it's not as light gray as the one beside it, this section. Okay, this is the section that will receive the next kind of rainfall. ये medium rainfall वाली जगह. Okay, so it is southern parts of Gujarat, East Tamil Nadu, थोड़ा सा northeastern peninsula covering Odisha, Jharkhand, Bihar, eastern Madhya Pradesh, northern Ganga plains, Chachar Valley, Assam wala, and Manipur. Okay, so these are the places which receive medium rainfall. Okay, अब उसके बाजू में you have to go 60 to 100 वाला region होगा, तो then now you go to the proper lighter parts. है ना, this section, उसके बाजू में ये जो छोटे छोटे sections नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे parts, that one, this part ऊपर का. So we are going into lighter section. Okay, that is Western Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Jammu Kashmir. You have to remember where you get, like, clearly जितना आप अंदर interiors में आ जाएंगे उतना ज़्यादा वो you know what do you say, उतना कम rainfall मिलता रहेगा आपको. Okay, that is what it is. Areas of inadequate rainfall. If you could remember this part, then you have to remember this part. Okay, below 50 centimeters of rainfall कौन से regions में मिलते हैं? This is proper rain shadow region. Okay, Andhra Karnataka, can you see this part? Yeah, so we are talking of this section. Okay, not even that, wait a minute, that would also not be this section. Let's talk of this Tamil Nadu wala section, ye wala section, and this part and this part. Okay, so we are talking of all these sections. Okay, so यहाँ पर आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के ऐसे parts, Ladakh and Western Rajasthan के, which either fall in the you know, like जहाँ पे cold desert है या hot desert है, या फिर जो rain shadow region में lie करते हैं, seriously rain shadow region में lie करते हैं. Okay, so we are usually talking of such sections. तो यहाँ पे completely inadequate rainfall मिलता है. All right, so this is how the distribution of rainfall happens. You have to remember which areas receive the maximum amount of rainfall and which areas receive the minimum amount of rainfall. Okay, सबसे कम rainfall and सबसे ज़्यादा rainfall कहाँ मिलता है, and snowfall सिर्फ आपको usually Himalayan region में मिल जाता है. Now, why study the distribution of rainfall? Because that will help you understand the variability in it. Variability का मतलब क्या होता है, people? What does variability mean? कि एक standard है, there is a standard that you know. This is the set standard. Okay, अब वो standard, this is the set standard. All right. तो इस standard से आप कितना deviate करते हो? How much you deviate from this particular standard should give you the standard of deviation, right? कि this is what you should have achieved, and this is how far you have gone from whatever the standard is. Okay, तो variability का मतलब होता है कि आप जो standard है उससे how far have you drifted. Okay, the coefficient of variation would be the standard deviation upon the mean into 100. That's the formula. Okay, so usually the thing to remember is, the correlation to remember is, the lesser the rainfall, more the variability. Okay, जितना ज़्यादा rainfall होगा किसी जगह पे, variability उतना less हो जाएगा. Okay, और जितना कम rainfall होगा किसी जगह पे, उतना ज़्यादा variability हो जाएगा. Okay, for example, let's look at this. Okay,
कोई जगह सिर्फ 50 centimeters of rainfall. Let's see, okay, let's consider a place which receives 250 centimeters of rainfall. This is good rainfall. Okay, suppose this is somewhere in Western Ghats and everything. This place receives 250 centimeters of rainfall. Okay. Now what happens is that this year, what has happened is that it has this year the rainfall has varied a little, and now I have only 25 centimeters rainfall कम है इस साल. Okay, than what I had received last year. Alright, so अभी मुझे को इस साल कितना rainfall मिला है? 225 centimeters. Okay, 225 centimeters is the rainfall I have received this year. Okay, what is the variability factor? कितने percentage का variability है ये? 10% का, है ना? This is the variability, right? 10% का variability हो गया है because last year it was 250 centimeters. अभी 25 centimeter कम है, so 10% का variability मिला है. Okay, agreed? मतलब 10% का deviation है, variability नहीं है, but 10% का deviation है. Okay, let's go with that. Now let's consider a place like Rajasthan. Okay, Rajasthan जैसी कोई जगह है, तो राजस्थान में normally बारिश जो है वो 50 centimeters मिलती है. Okay, same principle apply करते हैं. इस बार मुझको 25 सेम जितना वेस्टर्न घाट्स में कम बारिश मिला था उतना ही कम बारिश यहाँ पे भी हुआ है. ओके, वेस्टर्न घाट्स में 25% कम मिला था, यहाँ पर भी 25% कम मिलता है. What is 25% नहीं, 25 centimeters. What is 25 centimeters and 50 centimeters? 50% of the rainfall. So this time the rainfall has varied by 50%. Do you understand? जैसे ही आपका rainfall कम हो जाता है, the variability invariably increases. Okay, whereas यहाँ पर इतना ज़्यादा rainfall था, तो वो 25 centimeters was nothing. क्या 10% का variability हो गया. Okay, लेकिन यही 25 centimeters जब 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है तो आधा रेनफॉल होता है. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? वेरिएबिलिटी डिपेंड्स वेरी मच अपॉन हाउ मच रेनफॉल इज बीइंग रिसीव्ड. ओके, तो जितना ज्यादा रेनफॉल होगा वेरिएबिलिटी उतना कम होगा, लेकिन जितना कम रेनफॉल होता है उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी होता है. ओके, गॉट इट? समझा आपको ये एग्जांपल? आई डोंट नो. Okay, yes, समझा. Okay, thank you. Oh, sorry, किसी ने question पूछा था, why consider Equatorial region a biodiversity hotspot? अरे, because it is a biodiversity hotspot. सारे Equatorial rainforest and all में the biodiversity का मतलब ये होता है कि how much variety of life do you find? Life as in plant and animal species. Okay, so we are looking at that. So Equatorial region offers enough of that. It is a biodiversity hotspot. आपको बड़े सारे मिलेंगे within this region, within the Equatorial region. Okay, ठीक है. Sorry, I didn't check the question earlier. Okay, ठीक है. Now we move on to monsoon, and yeah, this is such an easy thing. But हम ना generally revise कर लेते हैं कि how does monsoon affect the economic life of India? Okay, agriculture पूरी तरह से monsoons पे depend करता है. Okay, Himalayas के अलावा we grow crops almost everywhere in India. Okay, every country, I mean every part of the country has a favorable condition or favorable temperatures to grow crops. Okay, लेकिन regional variations जो होते हैं वो तो होंगे, right? Crop में depending on what sort of climate is available and कितनी बारिश होती है, किस तरह का land है, land like you know what is the land more famous for, इसके basis पे crops grow करते हैं हम लोग. Okay, so we get variety of crops. ऊपर से rainfall में variability है, तो उसकी वजह से कुछ जगह पे floods होते हैं, कुछ जगह पे droughts होते हैं. So we are thinking about that part also. Okay, अभी agricultural prosperity किस चीज पे depend करती है? If the rainfalls are timely and adequately distributed. Okay, I think in the past few years we've all seen how much untimely rains have destroyed the crops in India. महाराष्ट्र में हमेशा, like if you read the news, you will always see कि you know बिन वक्त की बरसात जब आती है, बिना टाइम के, मतलब बेवक्त की बरसात जो होती है, वो कितना नुकसान करके चली जाती है फार्मर्स का, राइट? इट रियली डिस्ट्रॉयज द होल क्रॉप्स. पूरे साल का प्रोडक्शन खराब हो जाता है. इट इज वेरी हॉरिफाइंग इफ the rains aren't timely and they are not adequately distributed. Okay, sudden monsoon burst जो होता है, I told you right, monsoon burst करता है, so it causes soil erosion because अचानक बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है. It's not like the rain is well distributed or everything. It suddenly drops on your head. Okay, winter rainfall जो होता है, that is very beneficial for the rabi crops. That's not a problem. Lekin we are benefited by it. So that is clearly a part of the economic life of India. Okay, and ये जो regional climatic variation मिलता है आपको monsoon का, कि you will get a lot of
rainfall in Kerala. So भैया will always tell you this. केरला में ना पहले ऐसे thatched roofs हुआ करते थे, ये घर है ना आपका, तो उसका जो रूफ हुआ करता था ना, it used to be ऐसे sloping, because जो भी बारिश होगा फिर that will just slope downwards. Okay, that's the thing about Kerala houses. तो he had told me the other day that अभी बहुत ज्यादा वैसे घर नहीं मिलते, because people are building modern houses, ऐसे flat roofs and everything, but that's how it is. Okay, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर फ्लैट रूफ होगा तो. लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. आर वी गुड हियर? समझा आपको? सो दिस अफेक्ट्स दिस लाइफ आल्सो. कौलारू, हाँ, कौलारू एंड स्लोपिंग, यू नीड देम बोथ, कौलारू एंड स्लोपिंग. वो वाले रूफ सर्वाइव कैसे करेंगे वो पता नहीं, बिकॉज जब बहुत तेज हवा चलती है तो आई डोंट नो हाउ द टाइल्ड रूफ्स सर्वाइव. ऐसे लाइक आई डोंट नो हाउ दैट गोज. Anyways, second एक last concept introduce करना था आपको before I go ahead and discuss Copenhagen climates. I wanted to talk about ENSO. Okay, ENSO and global warming. हम ना वो El Nino and Southern Oscillation ये phenomenon study करने वाले. Okay, we've heard of El Nino. El Nino क्या होता है ना? El Nino is a एल नीनो, ला नीना, इन दोनों को साथ स्टडी करते हैं. सो ये ना एक थोड़ा सा वेरिएबल वेदर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेदर सिस्टम है, which brings floods, droughts and other weather extremes to various different parts of the world. Okay, see people, the thing is now कि ये जो phenomenon है एल नीनो या ला नीना, this is very specific to the South American coast. Okay, वो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, पेरुवियन कोस्ट, उस पे आकर करता है ये करंट, अ वार्म करंट. एल नीनो इज अ वार्म करंट, ला नीना इज अ कोल्ड करंट. ओके, तो ये स्पेसिफिकली पेरुवियन कोस्ट पे आकर करता है. लेकिन सिंस ये करंट वार्म या कोल्ड फॉर्म में पेरुवियन करंट पे आकर, पेरुवियन कोस्ट पे आकर करता है, इसलिए रेस्ट ऑफ द सदर्न ओशन गेट्स अफेक्टेड. ओके, बाकी का जो नीचे का सदर्न ऑसिलेशन है ना, दैट गेट्स अफेक्टेड. ओके, I am going to try to show you this. ये नीचे का, सॉरी वंस अगेन फॉर द इक्वेटर, वो मेरा हमेशा गलत होता है, वो बराबर वहां से नहीं जाता है जहां से जाना चाहिए. सो दिस इज द इक्वेटर. ओके, अभी द होल आइडिया इज कि वेस्टर्न पार्ट्स जो है कॉन्टिनेंट्स के, वहां से कोल्ड करंट्स ट्रैवल करते. ओके, दिस इज द होल आइडिया. वेस्टर्न पार्ट्स से कोल्ड करंट्स ट्रैवल करते एंड ईस्टर्न पार्ट्स जो है ना कॉन्टिनेंट्स के जो ईस्टर्न पार्ट्स है, वहां से वार्म करंट्स ट्रैवल करते. ओके, वार्म करंट्स, मैं उसको लाल में बना रही हूँ. वार्म करंट्स आर रेड इन कलर एंड कोल्ड करंट्स आर blue in color. Okay, that's the convention I've gone with. Okay, so this is the idea. All right, कि this is how the southern oscillation goes, कि this is how it goes. Okay, now ये रहा आपका वो करंट जिससे हमको लेना देना है. ओके, आई एम मार्किंग दिस इन ग्रीन. ये वाला जो करंट है वो चिली एंड पेरू के बाजू में जो जाता है, पेरुवियन करंट, दिस इज द करंट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हम्बोल्ट करंट एंड ये नॉर्मली कोल्ड करंट होता है. ओके, एवरी 1 in 5 to 7 years ये जो ठंडा वाला करंट है ना, कोल्ड करंट है, इसको रिप्लेस किया जाता है मतलब रिप्लेस हो जाता है ये विद अ वार्म करंट. ओके, एल नीनो ये नाम का एक करंट आ जाता है एंड इट इज अ वार्म करंट. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट कोल्ड करंट दैट फ्लोज इन द पेरुवियन कोस्ट लाइन, इंस्टेड एक वार्म करंट फ्लो करने लगता है एवरी 3 to 7 years. ओके, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है कि हर 5 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 3 to 7 के टाइम में कभी भी आ सकता है. ओके, उसकी वजह से वो टेम्परेचर जो है उस कोस्ट का, इट इज इंक्रीज बाय 10%, आई मीन 10 degrees. ओके, 10 degrees सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है. ऑलराइट, अभी इसमें क्या हो जाता है ना, अगर एक करंट कोल्ड हो जाए, लाइक सी पीपल, दिस वाज द होल आइडिया वाज कि अगर यहाँ पर कोल्ड करंट है तो फिर दिस कैन बी वार्म. ओके, ये वाला करंट वार्म हो जाएगा. बट नाउ इफ दिस करंट, ये वाला करंट जो है, चिली वाला करंट जो है, ये वाला चिली वाला करंट जो है, इफ दिस डिसाइड्स टू टर्न वार्म, ओके, अगर ये करंट अभी रेड हो गया, वार्म हो गया, तो इसका मतलब दिस पुअर थिंग, ये जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, जो उसका पार्ट है सर्कुलेशन का, दैट नीड्स टू गो कोल्ड, है ना, वो करंट ने कोल्ड हो जाना चाहिए. फिर अब ये करंट थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा इस तरफ. ओके, ये कोल्ड हो गया तो ये वाला जो करंट है, ये वाला भी कोल्ड हो जाएगा, ये वाला भी कोल्ड हो जाएगा, एंड देन ये सारे करंट्स ना उल्टे उल्टे हो जाते हैं. लाइक जो जहाँ पे करंट वार्म होना चाहिए था, करंट कोल्ड हो जाता है, जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो करना चाहिए था, वहां पे वार्म करंट फ्लो हो जाता है, एंड हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, this becomes a problem throughout everywhere. Like this part of the ocean doesn't get that affected,
Oh, sorry. No, still a little farther. क्या हो गया है यार, पता नहीं. Okay, we are good. ठीक है. This part of the ocean doesn't get that affected. ये वाला part नहीं affect होता है, लेकिन this one and this one, okay, ये दोनों parts बहुत affect हो जाते हैं. So everywhere where there should be a hot current, warm current, वहाँ पे cold current flow करता है. जहाँ पे cold current flow करता है, वहाँ पे करना चाहिए था, वहाँ पे warm current flow करता है. Okay, meaning if this region should have been a high pressure region, ये वाला रीजन ना थोड़ा सा हाई प्रेशर होना चाहिए था. हमारे मॉनसून्स के लिए वी रिक्वायर दिस रीजन टू बी अ लिटिल बिट हाई प्रेशर. ओके, जब यहाँ पे वार्म करंट फ्लो करने लगता है तो ये रीजन इतना हाई प्रेशर नहीं रहता, ये काइंड ऑफ लो प्रेशर बन जाता है. इसका मतलब यहाँ से मॉनसून्स ऑल द वे टर्न करके इंडिया की तरफ नहीं आएंगे. ओके, इंडिया में जो मॉनसून्स आते हैं, दीज आर विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन दैट कम from the equator, cross the equator and move towards India. Okay, अगर ये, and that depends if this region is high pressure region. नीचे इंडियन ओशन वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के बाजू में, that should be a high pressure region. लेकिन अगर वहां पे लो प्रेशर हो गया क्योंकि अब वहां से वार्म करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर इंडिया की तरफ आने वाला मॉनसून अपने आप वीक हो जाता है. ओके, मीनवाइल यहाँ के जैसे इंडिया का मॉनसून वीक हो जाता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज देन नाउ इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड करंट यू हैव अ वार्म करंट. अजीब सा, लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सफर फ्रॉम अ वीक मॉनसून. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को क्लियरली प्रॉब्लम हो जाती है वीक मॉनसून की. चाइना में बड़ी सारी बारिश हो रही है, चाइना गेट्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ओके, तो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग कीप्स हैपनिंग. ओके, ये सारी चीजें होती रहती है इफ द अगर एल नीनो रिप्लेस हो जाता है. ओके, एल नीनो रिप्लेसेस दैट पेरुवियन करंट, दैट इज व्हाट हैपेंस. ओके, so you get a distortion of equatorial atmospheric circulation. irregularities हो जाते हैं in the evaporation of sea water. ऊपर से ना क्या हो जाता है, कोल्ड करंट्स जो होते हैं, जैसे वो पेरुवियन हम्बोल्ट कोल्ड करंट था, तो वो जो करंट्स होते हैं ना, दे ब्रिंग अप फाइटोप्लैंक्टन. ओके, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ना, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स टाइप होता है, तो वो उसको क्लियरली ऊपर लाता है. ओके, इट ब्रिंग्स अपवर्ड विद इटसेल्फ, एंड देन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे फिश भी आ जाते हैं. ओके, दैट्स द आइडिया. तो वो प्लैंक्टन्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे फिश भी कम हो जाते हैं. वहां का फिशिंग इंडस्ट्री जो है पेरू का एक्चुअली का, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उस तरफ का, सो वो क्लियरली डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, एंड इट अफेक्ट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पेरू ऑल्सो, बिकॉज वो फिश के पीछे पीछे बर्ड्स आ जाते हैं. बर्ड्स का जो फर्टिलाइजर होता है, मतलब हाँ, तो बर्ड्स से जो फर्टिलाइजर बनता है, दैट इज यूजुअली ह्यूज इंडस्ट्री इन पेरू, तो वो इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो जाता है. ओके, नाउ ये करंट कब आता है, एल नीनो जो करंट है, व्हेन डज इट अकर, इट अकर्स इन दिसंबर. ओके, बिकॉज दिसंबर इज देयर समर, सदर्न हेमिस्फीयर का समर है दिसंबर. ओके, तो वहां पे इट इज कॉल्ड एज एल नीनो ऑफ लिटिल बॉय और चाइल्ड क्राइस्ट, बिकॉज दिसंबर के टाइम पे आता है. ओके, सो एल नीनो वार्म फेज है उसका, वेयर एज ला नीना इज द कोल्ड फेज. ओके, एल नीनो वेट होता है, ला नीना ड्राई होता है. एल नीनो वेट इसलिए होता है क्योंकि इफ दिस इज द पेरुवियन कोस्ट, ये ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन इफ दिस इज द पेरुवियन कोस्ट एंड दिस इज द एल नीनो, मैं इसको EN बुला रही हूँ, एल नीनो फ्लोइंग ओवर हियर, तो ये वार्म करंट है. वार्म करंट टेंड्स टू ब्रिंग प्रेसिपिटेशन टू द कोस्ट. ओके, वार्म तो इसीलिए वो वेट होता है, एल नीनो को वेट कहते हैं. whereas ला नीना brings in a dry weather, कोल्ड करंट है ना, तो इट brings in a dry weather. ओके, एल नीनो की वजह से इंडियन मॉनसून वीकन हो जाता है, whereas ला नीना अगर अच्छा होगा, अच्छा खासा कोल्ड है, तो देन इंडियन मॉनसून स्ट्रेंथन हो जाएगा. ओके, प्लीज रिमेंबर एल नीनो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है. ओके, दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज ऑलवेज ऑन द लुकआउट. जो कोई इंडियन वेदर स्टडी करता है, दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद एल नीनो. एल नीनो आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो फिर इंडियन मॉनसून, सारे इंडियन फार्मर्स को वार्निंग मिलती है कि यार इस बार का क्रॉप इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज बारिश अच्छी नहीं होगी. ओके, ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर एल नीनो इन दिस कॉन्टेक्स्ट. Okay, we have 10 more minutes because I'm intend to teach geography till 6 o'clock. Let's see. Let's look at the climatic regions of India. Okay, we need to look at those. India के जो climatic regions है ना, उसका that is a combination of various factors. Okay, बड़े सारे factors है. Temperature, rainfall सबसे decisive factors है इसमें. लेकिन India on a whole tropical monsoon climate. Okay, let's go with that. India on a whole has a tropical monsoon climate. लेकिन within India itself also you find multiple variations. Okay, within India जो भी variations है वो देखते हैं अभी. इसको by heart करना है आपको. ये it's very मेरे हिसाब से तो logical है,
तो you need to really learn this by heart. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो just learn it by heart. Okay, मैं आपको इसका कोड समझा देती हूँ in general how the code works. A जो है कैपिटल A, regions को ना कोपेन करके बनता था. तो the guy who classified all climates all over the world. Okay, so he gave this climatic types. Okay, ये जो टेबल दिखता है ना आपका, sorry, okay, ये जो टेबल नजर आ रहा है, he made this table. Okay, अब ये टेबल के हिसाब से he classified this into 6 groups. Okay, capital A stands for tropical humid. Okay, tropical humid climate. Capital B is for dry climates. Okay, capital C is for warm temperate. मतलब अभी you have crossed the Tropic of Cancer, okay, or the Tropic of Capricorn. That is what mid latitude or warm temperate climates mean. Okay, capital D is for cold snow forest climates, like the temperatures need to be really low, altitude high होना चाहिए, या फिर latitude में आप और भी दूर चले गए हो. Okay, you're looking for those climates. E is proper cold climates, tundra, polar ice cap वगैरह वैसे cold climates है. And H is highland climate. Okay, H is highland climate. समझा? Is this clear enough? 6 groups बनाइए. एक को कहिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, ट्रॉपिक्स के अंदर आएगा. क्लियरली ये इक्वेटर है, ये दोनों ट्रॉपिक्स है. इसके अंदर जो भी क्लाइमेट्स आएंगे दे विल ऑल बी विद द दे विल ऑल स्टार्ट विद द कैपिटल ए. ओके, बी वाला जो होता है वो ड्राई क्लाइमेट होता है. नाउ दैट ड्राइनेस कैन बी रिलेटेड आइदर टू ग्रासलैंड्स और टू डेजर्ट्स. ओके, 2 टाइप्स बनाए थे उन्होंने उसमें, सब टाइप्स, डेजर्ट टाइप्स का एंड ग्रासलैंड टाइप का, स्टेपी टाइप का, मतलब ग्रासलैंड टाइप का. दैट इज अ सीरियस ड्राई क्लाइमेट. ओके, capital C should be something जो now you're beyond the tropics. Okay, this region, warm temperate climates जो होता है, that is the region that we are talking of. Okay, mid latitude. And capital D should be cold, proper cold, like subarctic वगैरह ऐसे cold snow forest, और भी temperatures drop कर जाएंगे. And E will give you that polar ice cap वाला, like proper igloo वाला climate. Okay, tundras and polar ice caps and all that sort of thing. Capital H has nothing to do with say latitudes or anything. It has to do with a highland type of climate. Okay, the altitude is generally high. That's what you're looking for. Okay, अभी उसमें भी ये जो small f होता है ना, can you see the small f? That means it rains all year round. Okay, पूरा साल में बारिश होती रहती है. It rains throughout the year. Okay, that is what f means. Okay, छोटा f. छोटा m जो होता है that is for monsoon. Okay, छोटा m जो है small m, that stands for monsoon. And छोटा w जो होता है ना, that stands for winter is a dry season. Okay, कि w मतलब winter is a dry season. That is what it means कि winter में बारिश नहीं होगी. Okay, w means winter में बारिश नहीं होती है. That is what it means. Okay, now let's look at the rest of the ones. Okay, capital S usually stands for like okay, let's go with this. Capital S जो होता है ना, वो usually स्टेपी के साथ associate कर लीजिएगा आपको. Okay, capital S आप usually स्टेपी के साथ associate कर लीजिएगा. And ये छोटा H जो है ना, that you associate with a sort of a hotter region. Okay, like a desert. Like desert नहीं, लेकिन थोड़ा सा low latitudes में hotter region. Okay, subtropical वगैरह उसके साथ associate कर लीजिएगा. Whereas this thing is a like WH would mean a kind of a subtropical desert. Okay, मतलब dry है, arid है, लेकिन grassland नहीं है. So वो proper desert types का climate हो जाएगा. Okay, that is what you associate that with. SK का मतलब होगा कि steppy है, लेकिन थोड़ा सा cold है. कोल्ड मतलब नाउ क्लियरली थोड़ा सा हाई लैटिट्यूड्स में जाना पड़ेगा आपको, थोड़े से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में जाना पड़ेगा, मिड लैटिट्यूड. ओके, एंड WK मींस वंस अगेन मिड लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट. ओके, यू आर टॉकिंग ऑफ अ मिड लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सी टाइप का क्लाइमेट. ओके, उस F होगा मतलब ऑल ईयर राउंड बारिश हो रही है एंड वार्म समर्स होंगे. A is warm summers. Okay, that is a thing. CS is a thing. We need to look at the CS climate. One very famous climate that is asked is CS. Okay, Mediterranean type का climate जो होता है that is CS. इकलौता climate मिलेगा. Summers are dry. Summers are dry. Small s मतलब summer dry है. Okay, मतलब summer में बारिश नहीं होती है. So this is a very very weird climate. Usually किसी और climate में ऐसा नहीं होता है कि summer में बारिश नहीं होती है. You get rains throughout the year, लेकिन summer में definitely बारिश होती है. Every single climate has rains in summer. Okay, ये इकलौता है जो कहता है no thank you, no rains in summer. Okay, that's just the Mediterranean type of climate. Okay,
ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल में हमको ये डीएफ पता होना चाहिए. लेट्स गो विद डीएफ. ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल में डीएफ जो है दैट मींस नो ड्राई सीजन एंड विंटर्स बहुत सिवियर होंगे. ओके, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट टू नो. एंड ये ईटी वाला क्लाइमेट पता होना चाहिए. ईटी इज नो ट्रू समर. ओके, लाइक देयर इज नो समर समर. लाइक ऐसा नहीं होता है कि वाह क्या धूप निकल आई एंड इट्स अ वार्म टेम्परेचर एंड एवरीथिंग. ऐसा वाला टेम्परेचर नहीं, ऐसा वाला क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो ट्रू समर. ओके, दैट इज व्हाट ईटी मीन्स. एंड हाईलैंड क्लाइमेट इज हाईलैंड क्लाइमेट. ओके, मैंने जानबूझ के सिर्फ वही ग्रुप सिखाए हैं आपको जो हमको एनकाउंटर करने पड़ते हैं, बट दैट इज व्हाट इट इज. ओके, समझा आपको? इज दिस ओके? हाँ, नाउ वी मूव ऑन टू सी द एक्चुअल दिस क्लाइमेट्स ओवर हियर. ये रहे हमारे क्लाइमेट्स. दिस इज द कोपेन क्लाइमेट. इंडिया को जैसे अप्लाई किया जाता है, क्लाइमेट्स एज अप्लाइड टू इंडिया. बिगिन विद द फर्स्ट वन, AMW. ओके, दिख रहा है आपको ब्लू में? दिस कैन यू मेक आउट दिस क्लाइमेट इन ब्लू? दिस इज कॉल्ड एज AMW. A मतलब ट्रॉपिकल, M मतलब मॉनसूनल, W मतलब विंटर्स ड्राई. ओके, ठीक है. सो ये ड्राई, विंटर्स ड्राई होता है ना इस तरफ, वेस्टर्न घाट्स की तरफ एंड ऑल. सो दिस क्लाइमेट गेट्स कॉल्ड एज द AMW. याद रहेगा ना, मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट, प्रॉपर वेस्टर्न घाट्स वाला क्लाइमेट. ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, है ना, दैट्स द एरिया दैट गेट्स इट. दिस इज अनदर फेमस क्लाइमेट, AS. ओके, AS का क्लाइमेट और भी फेमस है. A मतलब वंस अगेन मॉनसूनल, S मतलब summer dry. Summer dry मतलब your proper Coromandel coast. Okay, Tamil Nadu is the only place in India which does not receive rainfall in the summer. Okay, मतलब उसका major rainfall summer में नहीं आता है. बहुत हल्की सी बारिश मिलती है उसको summer season मतलब monsoons में. उसका real बारिश comes in October November. Okay, that's the real rainfall for Tamil Nadu. So AS matlab dry summers. Okay, so monsoon with dry summer, this is AS. All right, so this is one climate you've got to remember. Now you come to this one. Can you make out ye pura white mein jo hai wo, that is the AW. Okay, AW is tropical savanna. W का मतलब होता है, A मतलब tropical में है, W मतलब winter dry है. So this is that particular climate जहाँ पे आपको like you can't include the monsoon क्योंकि बारिश इतनी नहीं है. M वाला जो है ना वो वाला क्लाइमेट यहाँ पे, स्मॉल M वाला क्लाइमेट यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि क्लियरली उतनी बारिश नहीं है. सो दिस होल रीजन गेट्स क्लासिफाइड एज AW. ओके, अभी दो ये CWG देखते हैं उसके बाद. ओके, CWG जो है, C मतलब क्लियरली नाउ यू हैव क्रॉस्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, क्योंकि नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, है ना, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. W मतलब विंटर ड्राई है एंड G स्टैंड्स फॉर द गंगा प्लेन्स. ओके, G जो होता है ना वो गंगा प्लेन्स के लिए होता है. सो ये बहुत स्पेसिफिक है, इंडिया स्पेसिफिक है. गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. So this is CWG. Okay, and this climate extends to this part also. You can clearly make out ये पूरा purple color का climate जो है, that is it. Okay, come to one more important climate. ये दिख रहा है आपको, BSHW. Can you make out this climate? हाँ, this is BSHW. Okay, BSHW is a very interesting climate to have because ये वाला जो climate है ना, this talks of semi-arid steppe. Okay, ये ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट. ओके, वो जो कैपिटल S है दैट इज ऑफ द ग्रासलैंड टाइप्स. ओके, B मतलब ड्राई, कैपिटल B मतलब ड्राई, कैपिटल S मतलब स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है, ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट है. ओके, H का मतलब होता है ये थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन्स का क्लाइमेट है. मतलब ट्रॉपिकल एज इन it is a little low latitude, closer to the tropics, वैसा वाला क्लाइमेट है. ओके, हॉट है थोड़ा सा, मतलब H मतलब थोड़ा सा हॉट है. इट इज नॉट एग्जैक्टली कोल्ड. ओके, ड्राई है लेकिन हॉट है. ओके, एंड W मीन्स विंटर्स आर ड्राई. ओके, तो ये आई एम सॉरी मैं ना ये सब मिटा रही हूँ एंड आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट. ओके, नाउ ये वाला क्लाइमेट बराबर उस रीजन में लाई करता है जहाँ पे सॉलिड रेन शैडो रीजन. ओके, दिस इज प्रॉपर रेन शैडो रीजन. ये वेस्टर्न घाट्स का रेन शैडो है, ये वो अरावलीज का रेन शैडो है, BSHW. सो दिस इज प्रॉपर रेन शैडो रीजन. ओके, फाइन. नाउ you come to one more important climate which is the desert. Okay, desert जो है इंडिया का, that gets classified as BWHW. Okay, this is proper desert climate. ये proper desert का climate है क्योंकि actually उसका abbreviation B because it is dry, W because it is a desert, hot desert, H मतलब hot desert, and छोटा वाला W जो है small case W, that means winters are dry. Okay, यहाँ पे winters क्या है, summers भी dry, everything is just dry. Okay, so लेकिन जितनी भी
डेजर्ट में भी जो भी बारिश आती है, just comes in the monsoon season. Winters में तो नहीं आती इस तरफ. Okay, is this understood? So remember, this is very close by. Your BSHW and BWHW are very close by. Okay, so remember कौन सा climate है. This is one very unusual climate, DFC. अरुणाचल प्रदेश में जो climate मिलता है, it is cold, humid winter with short summer. Okay, तो यहाँ पर ना आपको mostly you will get rains, well distributed rains throughout the year. Okay, यहाँ पर भी आपको ऐसा एक कोई you know what do you say, you don't have a true season जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है. Okay, this is humid continental, this is proper humid continental. Okay, and D मतलब clearly the temperatures are really low now, like अब clearly बहुत कम temperatures की बात कर रहे हो. And this is E and ET. Okay, मतलब यहाँ पे clearly polar type का climate है. Is this understood? याद रहेगा आपको? कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अक्सर पूछा जाता है कि इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट होता है, इंडिया का एक्चुअल क्लाइमेटिक टाइप क्या है, पूरे इंडिया को अगर क्लाइमेटिक टाइप से डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, AM, पूरे इंडिया का AM होगा. ओके, बिकॉज इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो पूरा इंडिया शुड आइडियली गेट यू नो बी कॉल्ड एज AM. ओके, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में कौन सा क्लाइमेट है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, गंगा प्लेन्स में कौन सा है. तो दिस यू शुड आइडियली नो. कभी कभी मैप देके आपको ये क्लाइमेट टाइप डिफाइन करते हैं एंड पूछते हैं कि ये कौन सा क्लाइमेट होगा. सो बी वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट दीस क्लाइमेटिक टाइप्स आर. ओके पीपल, आर वी गुड? सॉरी, इंडिया के ट्रेडिशनल सीजन्स है 6 2 मंथली सीजन में डिवाइड करते हैं. रिमेंबर हाउ दे वर्क. ये 3 थोड़े से कोल्ड है. शरद, हेमंत एंड शिशिर आर considered a little cool, मतलब you know ऐसे cool, cooler and cold ऐसे समझे जाते हैं. And then this is Varsha is obviously बारिश, Grishma is obviously गर्मी, and Vasant is obviously spring. Vasant is spring, right? So Vasant is spring. Okay, so you remember these, right? ये शिशिर के बाद obviously spring होगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो फिर spring आ जाती है. Okay, okay, ठीक है, it's very good क्या? Okay, चलो, thank you very much. Okay, and we are done with climate. Tomorrow we'll follow up with vegetation. Okay, कल vegetation कर लेंगे, फिर उसके बाद immediately soils कर लेंगे. That will finish off the physical part of India. Then we'll move on to the economic part of India. Okay, ideally it should not take me more than an hour each to do vegetation and soils. We'll finish that off. Okay, अभी ना हम जाके पार्लियामेंट नहीं कर रहे थे हम लोग. नहीं, sorry, we were doing this. No? Okay, give me one moment, people. I think this state legislature. We are doing this. Okay, we are going to look into this. Chalega. Let's do state legislatures today. State legislature is slightly different from the union legislature. Okay, especially in the way elections होते हैं ना legislative. See, people, state legislature जैसा होगा, it is like उसमें same analogy होगा जैसे union legislature में है, 2 houses होंगे, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे 2 houses होते हैं. That also has a, you know, state unions में compulsory basis पे bicameral legislature है, right? तो वैसे states में you know वॉलंटरी बेसिस पे होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर. अगर आपको चाहिए तो आपको विधान ये मिलेगा विधान परिषद, अदरवाइज यू कैन डू जस्ट विद द विधानसभा, दैट इज आल्सो फाइन. ओके, नाउ लुक एट दिस पार्ट की जैसे विधानसभा जो है दैट इज योर दिस फॉर व्हाट यू से दैट्स द पैरेलल फॉर लोकसभा. Okay, Vidhan Sabha in the state legislature is parallel for the Lok Sabha and the union legislature. Okay, Vidhan Parishad in the state legislature is parallel for the Rajya Sabha in union legislature. So we need to look at these 2 different things. Okay, कल क्या पढ़ा मैंने कल state executive पढ़ाया, कुछ ये नहीं था. We just looked at the, it's very simple if you read this also. Union legislature पढ़ा होगा ना, तो state legislature बहुत different नहीं होता. Okay, so here it is. Article states जो है ना वो part 6 में डील करते हैं हम obviously. And state legislatures जो होते हैं they can be unicameral और bicameral. Unicameral मतलब एक ही house है उसका. You have the governor and there is just one single house which is the state legislative assembly. Okay, bicameral होंगे तो governor के साथ साथ 2 houses होते हैं. You have the state legislative assembly and the state legislative council. Okay,
लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होता है. ओके, नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स इन इंडिया. इतने ही स्टेट्स है जिसका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है इंडिया में. आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड बिहार. ओके, नाउ ये जो 6 स्टेट्स है, इसके अलावा और कोई बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स नहीं है. सो ये 6 स्टेट्स को लर्न कर लीजिएगा एंड दैट इज ऑल द बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स यू हैव. ओके, अभी ये रूल को पढ़ लीजिएगा. पार्लियामेंट जो होता है ना, दैट कैन एबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसको अबॉलिश किया जा सकता है या फिर क्रिएट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट. ओके, बट ये कौन करता है, कौन बताता है स्टेट यूनियन को ये करने के लिए? यूजुअली वो जो स्टेट होता है ना, कंसर्न स्टेट होता है, वो बताते हैं कि यार वो मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेजिस्लेशन पास करते हैं कि वी वांट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, हमको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो यूनियन गवर्नमेंट उनको बना के देता है, फाइन यू कैन हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, देन अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वी कांट अफोर्ड टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एनीमोर, so then they can tell the government again, they can tell the parliament again, nahi we think we can do without a legislative council. तो यूनियन जो होता है, यूनियन पार्लियामेंट जो होता है, वो उसको अबॉलिश कर देता है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को. एंड दिस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिपीटेड. ये ऐसे रिंस रिपीट पे चल सकता है पूरा टाइम, फुल टाइम ये ऐसा रिपीट कर सकते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए. एंड यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट रियली लाइक ऐसा कोई कुछ लिखा नहीं है कि एक स्टेट को सिर्फ 2 बार या 3 बार पूछ सकते हैं कि हमको चाहिए या नहीं चाहिए. ओके, दिस इज लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल. So you can keep asking and abolishing for the legislative council. Are we good? Not that it is a recommended procedure, but that's how it goes. All right. ठीक है. Now let's look at the state legislative assembly. मतलब ये लोकसभा वाला पैरेलल है अपना. This is the विधान सभा, which is the parallel for the लोकसभा. Okay. अभी legislative assemblies जो होते हैं ना, this consists of representatives who are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise. Okay, जैसे हम लोकसभा इलेक्शंस में जाके वोट करते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी वोट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में. people go and vote, people like you and me go and vote. Okay, maximum strength जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, इट इज फिक्स्ड एट 500 कि 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. मिनिमम स्ट्रेंथ जो है दैट इज फिक्स्ड एट 60 से कम नहीं हो सकते, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते. सो वो जो स्ट्रेंथ है आपका, इट शुड बी ग्रेटर देन 60 but less than 500. Okay, that is the general idea. The strength of the Vidhan Sabha should be less than 500, greater than 60. Okay, that's the idea. Lekin there are some states which get to have lesser number of people. Okay, and which are these states? Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa. They can do with just 30 members. Okay, Mizoram, which can do with just 40 members, and Nagaland, which has just 46 members. The reason being कि वो states जो है उसका population इतना बड़ा है भी नहीं कि आप वहाँ पे compulsory basis पे 60 members लगा दो. Okay, so जरूरत नहीं है 30 members में काम चल जाता है या 40 members में या 46 members में. So that's fine. Just remember which states के कितने members होते हैं, because sometimes that becomes a question. ऐसे सारे वियर्ड एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यूपीएससी डेफिनेटली पूछता है. अच्छा, दिस इज द रूल, देन व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल? ओके, दैट इज व्हाट यूपीएससी लव्स टू आस्क. अभी ये जो स्टेट्स होते हैं उसको ना, जो भी स्टेट दिया होगा आपको, ओके, उसको यूजुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं. ओके, इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लेते हैं कि यार दीज आर डिफरेंट. देन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से ए से एक इंसान को इलेक्ट करते हैं, बी से अलग, सी से अलग, डी से अलग. यू अंडरस्टैंड? तो वो जो हम जिसको प्रोविंसेस या एरियाज या सेक्शंस कहते हैं ना, उसका टेक्निकल नाम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है. ओके, सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव गेट्स सिलेक्टेड एज एन इलेक्टेड one representative gets elected, okay, from each constituency. Now ये जो seats होते हैं obviously they are reserved for scheduled castes and scheduled types on the basis of the population ratios, and members are given an oath of office by the governor. Okay, जो भी members elect किए जाते हैं, they are usually given an oath of office by the governor. Yeah, good. So this is okay. This is good. All right. Now let's look at the duration of this. Okay, duration कैसा होता है इसका? लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंट चेंबर तो नहीं है. ओके, नॉर्मली उसका टर्म जो होता है दैट इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस. उसके बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है. ओके, गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उनको चीफ मिनिस्टर ने बोला. तो चीफ मिनिस्टर ने अगर एडवाइस किया कि इसको डिसॉल्व कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो गवर्नर कर सकते हैं. ओके, एंड ये जो टर्म होता है असेंबली का, दैट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट 1 year एट अ टाइम. ओके, 1 साल से
स्टेट असेंबली का भी टर्म बढ़ा सकते हैं 1 year एट अ टाइम अगर नेशनल इमरजेंसी हो एंड यू कांट कंडक्ट इलेक्शंस। ओके, नॉर्मली असेंबली का टाइम बढ़ाने की जरूरत कब होती है? सी फॉर एग्जांपल अगर ये दिस इज द 5 year टर्म जो खत्म हो जाती है। ओके, दिस इज द 5 year टर्म जो लाइक से सपोज किसी स्टेट असेंबली की 5 year टर्म आज अभी 31 मार्च को खत्म हो रही है। ओके, अभी वो टर्म खत्म हो जानी चाहिए, तो उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करने चाहिए थे। लेकिन से सपोज कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है कंट्री में, जैसे कोविड वाला सिचुएशन है, यू कांट कंडक्ट इलेक्शंस। रिमेंबर जब लॉकडाउन वगैरह हुआ करते थे, नॉट आफ्टर जब हमने सारे स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट किए, या फिर कोई सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन आ गया एंड यू रियली कांट कंडक्ट इलेक्शंस। ओके, तो उस केस में यू कांट से नहीं अभी गवर्नमेंट खत्म हो गया, यू हैव टू, ये बना बनाया गवर्नमेंट था ना, इसका सिर्फ टर्म एक्सटेंड कर देते। ओके, सो दैट टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम एंड दिस कैन हैपन फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए कर सकते हैं। ओके, आइडियली जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट प्रोसेस एंड इमीडिएटली होल्ड इलेक्शंस। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? दैट द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be 25 years of age, must possess other qualifications prescribed by the parliament, and they must be an elector for an assembly constituency in the concerned state. Okay, वहां पे वो इलेक्टर करके रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब उनका जो वोटर्स आईडी कार्ड है वो उस स्टेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, समझा? दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ठीक है, अभी स्पीकर को देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है उस लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। इनका इलेक्शन कैसे होता है? यूजुअली ही इज चोजन बाय द पीपल फ्रॉम अमंग्स्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो यूजुअली रूलिंग पार्टी के ही बहुत है क्योंकि उनके ही ज्यादा मेंबर्स होंगे, सो स्पीकर इज यूजुअली फ्रॉम दैट सेक्शन। ओके, अभी उनका टर्म जो होता है that usually lasts until the term of the legislative assembly. Okay, अभी ये पोजीशन उनके हाथ से कैसे जा सकती है? He may vacate the office. Okay, वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं to the deputy speaker, that can happen. या फिर अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही ना रहे for some reason, if he resigns from the legislative assembly, then obviously he'll be considered to have resigned from the post of a speaker as well. Okay, if he is removed by a resolution passed by the majority of all the then members of the assembly. Okay, अगर इनका रिमूवल का ये पास करना है तो यू रिक्वायर जस्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड उन्होंने मेजॉरिटी से पास कर देना चाहिए कि ये बंदे को रिमूव करना है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द स्पीकर। ओके, डेप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं होंगे, इफ ही इज नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन द डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स दोस ड्यूटीज। ओके, अगर स्पीकर एब्सेंट होते हैं या वेकेंट होते हैं उनका ऑफिस, तो फिर यूजुअली इट इज द डेप्यूटी स्पीकर हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज। ओके, अभी स्पीकर ना यूजुअली क्या करते हैं कि अगर स्पीकर भी नहीं होंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होंगे वो काम करने के लिए, तो फिर कोई तो होना चाहिए, राइट, जो ये सारे ड्यूटीज परफॉर्म करे। तो इसके लिए वो खुद ही नॉमिनेट करते हैं अ पैनल ऑफ चेयरमैन। ओके, ऐसे एक पैनल नॉमिनेट करते हैं मल्टीपल लोगों का, एंड उसमें से फिर कोई भी एक इंसान स्पीकर के ड्यूटीज निभाते हैं अगर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों भी अवेलेबल नहीं होंगे तो। ओके, समझा? So, and उनको वो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है that is nominated by the speaker himself. Okay, speaker खुद ही nominate करते हैं इनको कि यार in my absence and in the absence of the deputy speaker, these are the people, one of these people can take charge. All right, and okay, अभी इनके powers and duties देखते हैं speaker के ना। Let's look at the powers and duties of the speaker. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो प्रॉपर प्रिंसिपल जैसे बैठते हैं यार। हैव यू नेवर सीन विधानसभा के या फिर विधानसभा के नहीं लेकिन लोकसभा के वगैरह तो ये देखे होंगे ना अपने लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी पे सेशंस कैसे चलते हैं एंड सिटिंग्स कैसे होते हैं। सो वो जो प्रोसेस है पूरा कि everybody speaks and everyone is trying to make a point. So his first thing is his first duty is to maintain order and decorum in the house. Okay, he is the final interpreter of the provisions of the Constitution of India. Constitution में विधानसभा के बारे में क्या बोल के रखा है, वो हाउस को चलाने के रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड बिजनेस कंडक्ट कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ इससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, दे आर ऑल ये सब कुछ जो होता है वो सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक ही गेट्स टू इंटरप्रेट इट एज द लास्ट अथॉरिटी। ओके, ही इज द फाइनल authority on it. And parliamentary precedents within the house कि what should we do within the house, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, this is all something that falls under his jurisdiction. Okay,
वो हाउस के मीटिंग्स एडजर्न करते हैं या सस्पेंड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम. ओके, ही कैन से कि लंच के बाद मिलते हैं या कल मिलते हैं या 4 दिन बाद मिलते हैं, व्हाटएवर. ही कैन adjourn the house, he can suspend meetings. यूजुअली मतलब द थिंग इज, जब कोई वोट करने की बारी होती है ना हाउस में, तो ये वोट नहीं करते. स्पीकर को फर्स्ट टाइम में वोट नहीं करना पड़ता है. अगर टाई हो जाए, इफ देयर इज अ टाई एंड उनको डिसाइडिंग वोट डालना हो, तो ही वो डिसाइडिंग वोट डालते हैं. ओके, वो नॉर्मल केस में वोट नहीं करते. स्पीकर फेमसली नॉर्मली वोट नहीं करते, ही जस्ट कास्ट द डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई. ओके, ये डिसाइड करते हैं बिल मनीबल है कि नहीं. दिस इज तो सो नॉर्मल, लाइक उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है. He decides on the question of the disqualification of a member, agar in case of defection, just in case of defection. Okay, and he is the chairman of the business advisory committee and rules committee and general purpose committee, and वो सब कुछ के chairman होते हैं वो, and वो सारे parliamentary committees के chairman होते हैं जिसके ऊपर उनका appointment होता है. अगर speaker को किसी parliamentary committee पे appoint कर दिया गया है, तो अपने आप वो उसकी chairman भी बन जाते हैं. Okay, this is तो a given thing. Let's look at the state legislative council. State legislative council मतलब you're talking of the panel for the Rajya Sabha in the state level. Okay, मतलब state government में, अगर state government मतलब state polity में अगर राज्य सभा का कोई पैरेलल है, तो then उसको कहेंगे state legislative council और the विधान परिषद. Okay, famously called as the विधान परिषद. अभी उसका composition थोड़ा सा different होगा. सेम प्रिंसिपल्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होंगे, उन लोगों के लिए हम वोट नहीं करते. आपको कभी याद है आपके मॉम डैड कभी जाकर आपको कह गए होंगे, नहीं कहे कहाँ होगा शायद, अगर वो टीचर्स वगैरह होंगे ना, तो दे मस्ट हैव प्रोबेबली सेड कि यू नो वी गो एंड वोट फॉर द काउंसिल के इलेक्शंस एंड एवरीथिंग. ओके, लेकिन नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, जिनके नॉर्मल जॉब्स होते हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट, दोस पीपल आर have nothing to do with the elections of the state legislative council. Okay, state legislative council के elections जो होते हैं, those people are indirectly elected. उनका indirect election होता है by the system of proportional representation by a single transferable vote. Okay, ये principle हम सारे indirect elections के लिए follow करते हैं. Proportional representation by means of a single transferable vote. Okay, now let's see what happens. यहाँ पर ना 5/6 members जो होते हैं, so what you do is आप ना legislative council जो होता है उसका membership आप divide करते हो into 6 types. Okay, 6 groups में divide करते हो. You divide the membership into 6 groups. Okay, अब उसमें से जो 5/6 people है, they are elected through elections, and 1/6 number of people जो होते हैं ना, they come directly nominated. Okay, उनको nominate किया जाता है by the governor. Okay, कहाँ से? From the field of literature, science, art, cooperative movement, social service, ऐसे field से nominate किया जाता है. Okay, by the governor. Now let's look at the rest of the 5/6. Okay, वो बाकी के जो 5/6 है उनको कैसे चुना जाता है. एक मिनट, before we move on to इनको कैसे चुना जाता है, let's look at what is the maximum and minimum strength of the this legislative council. Okay, तो legislative council का जो maximum strength है, that can be 1/3 of the total strength of the assembly. Okay, so for example, अगर assembly का strength, legislative assembly का strength 300 people है, okay, तो council cannot be great, council का strength should be less than 100 people. Okay, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है council का strength. It has to be less than 100 people or less than or equal to 100 people. Okay, that is what the strength should be. Fine. एंड मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 40 तो होना चाहिए, कम से कम 40 मेंबर्स होने चाहिए. मतलब अगर आपको काउंसिल फॉर्म करना है तो उसकी जरूरत ऐसी है कि कम से कम 40 मेंबर तो होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में. एंड उसका जो नंबर है वो जो भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1/3 ऑफ व्हाटएवर द स्ट्रेंथ ऑफ योर लेजिस्लेटिव असेंबली इज. ओके, नाउ लेट्स लुक एट यूजुअली उसका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है काउंसिल का, दैट इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट फिक्स करके देता है, क्योंकि पार्लियामेंट बना के देता है, राइट, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल या अबॉलिश करके देता है, तो पार्लियामेंट बताता है ओके फाइन, ठीक है, इतने लोग हो सकते हैं आपके पास काउंसिल में. नाउ लेट्स लुक एट हाउ दीस पीपल आर इलेक्टेड. ओके, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल के, they are elected by members of the local bodies in the state like municipalities, district boards, etc. Okay, तो ये जो लोग म्यूनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पे होते हैं, दोज पीपल कैन वोट इन दीज इलेक्शंस. ओके, वो 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करके दे सकते हैं, दे कैन इलेक्ट दीज पीपल. ओके, नाउ 1/12 मेंबर्स जो होते, wait a minute, let's go for another 1/3 and I'm interested in that. Another 1/3 members जो होते हैं,
they are elected by members of the state legislative assembly from amongst persons who are not members of the assembly. Okay, मतलब क्लियरली यहाँ पे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो आप फॉरवर्ड करते हैं कि इन कैंडिडेट्स में से किसी एक को वोट कीजिए, लेकिन इलेक्टेड जो है मतलब जो लोग वोट करने वाले हैं, दोज पीपल आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, विधानसभा के मेंबर्स वोट करते हैं कि इनमें से ये जो 4-5 कैंडिडेट्स है इसमें से कौन जाएगा विधान परिषद पे. ओके फाइन. सो 1/3 पीपल are voted by those from the state bodies like municipalities and district boards, and there are local bodies per se elections hote hain, and 1/3 people are voted by members of the state legislative assembly. Okay, then 1/12 members jo hote hain, they are elected by graduates of 3 years standing and residing within the state. Okay, एक और elected का group है आपका which is graduates. Okay, graduates of 3 years standing and those who are residing within the state. Okay, मतलब people जो clearly थोड़े बड़े हो गए, graduate हो गए 3 साल से, and then वो उसी state में रहते हैं, उस state का हिस्सा है. Okay, and 1/12 are elected by teachers of 3 years standing in the state, not lower than the standard than secondary school. Secondary school के ऊपर वाले teachers जो होते हैं, जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे, तो वो लोग वो बाकी के 1/12 को elect करके देते हैं. Okay, fine. If you add 1/3 plus 1/3 plus 1/12 plus 1/12 plus 1/6, it will ideally form 1. Okay, add करके देखिएगा. That finishes off this thing. Okay, thank you very much for joining me, and I shall stop the lecture here. I know it's confusing. Just remember कौन कितने लोग कहाँ पे vote करते हैं. Okay, thank you. Bye bye.